Dear students, let us study our next topic, purification of colloidal solution. It is not mentioned in your syllabus, but we can do it for our general knowledge because an important concept is discussed in it, that is dialysis. Dialysis is a very important concept. So let us have discussion on purification of colloidal solutions. बच्चे जब हम colloidal solution बनाते हैं, when we prepare the colloidal solution, if you remember, ये देखिए बच्चे, अगर आपको याद है तो when we prepare colloidal solution, these are the methods used, chemical methods. Most of the time, during their preparation, some impurities remain there in the colloidal solution. गोल्ड सॉल्ट बनाया, this is impurity. गोल्ड सॉल्ट बनाया, this is impurity. नाइट्रोजन तो चली जाएगी बाहर, है ना? इसी तरह से गोल्ड सॉल्ट बनाया, हमने यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनाया, so we have the impurity. हमने आर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट बनाया, H2S पास की, अगर हमने H2S एक्सेस में पास की तो बाकी जो एक्सेस वाली है वो डिसॉल्व रह जाएगी सॉल्यूशन में, है ना? So most of the time when we prepare the salt, there remain impurities in the salt and these impurities may destabilize the salt. ये हमारे colloidal solution को destabilize कर सकती हैं. And if our colloidal solution get destabilized, it will get easily coagulated over a period of time. इसकी easy क्या हो जाएगी बच्चे? Coagulation. इसलिए जरूरत पड़ती है तो need arises to purify the colloidal solution. बच्चे जरूरत पड़ती है colloidal solution को क्या करने की? Purify करने की. The need arises to purify the colloidal solution. So various methods which are used for purification of colloidal solution, this method dialysis is one of the methods. उनमें से एक method क्या है बच्चे? Dialysis. What is dialysis? The process of separating particles of colloid from those of crystalline. जो impurities होती हैं बच्चे, they are crystalline in nature. The impurities which remain in the colloid during its preparation, colloidal solution, they are crystalline in nature. उनकी nature क्या होती है बच्चे? Crystalline. जैसे HCl रह गया बीच में, हमने देखा ऊपर methods of preparation के दौरान, so their nature is crystalline. So the process of separating colloid from the crystalline by diffusion of mixture through animal membrane or parchment paper. Cellulose का बना होता बच्चे ये, cellulose का, that is called as dialysis. Why dialysis? Simple. The process of separating the particles of colloid from those of crystalline by diffusion of a mixture through parchment or animal membrane. Diffusion करवानी, किसकी diffusion करवानी बच्चे? Crystalline. Diffuse out करवा देना उसको through animal membrane. वो वहां से निकल के चला जाएगा, वो वहां से जो आपका क्रिस्टलाइड है वो मूव आउट कर जाएगा. तो यूज हमें किसको करना पड़ता? हमें यूज करना पड़ता ऐसी मेम्ब्रेन को which can allow the passage of crystalloidal particles through it but not the colloid. That is, we have to use a semi permeable membrane. हमें क्या यूज करनी पड़ती है बच्चे? Semi permeable membrane. So the method is based on the principle क्या है बच्चे? The method is based on the principle that particles of crystalloid can pass through parchment paper or cellophane membrane, whereas those of colloids do not. मैंने जैसे बताया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो क्रिस्टलाइड के पार्टिकल है वो सेलोफेन बैग, सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं, जबकि कोलाइड के पार्टिकल उसमें से पास नहीं कर सकते. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. दैट इज these membranes are semi permeable membrane. बच्चे ये क्या है?
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑपरेटर्स आपके सामने है बच्चे, दिस इज द ऑपरेटर यूज। जिस ऑपरेटर्स को हम इसमें यूज करते हैं वो आपके सामने है। इसमें क्या है बच्चे, वी टेक डिस्टिल्ड वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में हम बच्चे डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, आपके सामने है, और इसमें हम सेलोफेन बैग को बच्चे सस्पेंड कर देते हैं, विच कंटेन कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या भरा हुआ है हमने बच्चे, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है, दिस सेलोफेन बैग, ये बच्चे, ये जो बैग, इट्स मेम्ब्रेन is semi-permeable. It allows the passage of what crystallize through it. अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है बच्चे, क्रिस्टलाइड बाहर बिल्कुल भी नहीं है। हमने डिस्टिल्ड वाटर को यूज किया है। इनिशियली द कंसेंट्रेशन ऑफ द क्रिस्टलाइड इज नेग्लिजिबल आउटसाइड, whereas inside crystallite is at higher concentration. क्योंकि इसमें मूवमेंट अलाउड है क्रिस्टलाइड की, what will happen, the crystallite start migrating, diffusing through the semi-permeable membrane. क्रिस्टलाइड डिफ्यूज करना शुरू कर देगा into distilled water through semi-permeable membrane. बच्चे चूंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टलाइड की मूवमेंट को बोथ वे अलो करती है। ये नहीं है वन वे, नहीं है मूवमेंट बच्चे, बोथ वे है। मतलब जो क्रिस्टलाइड है वो बाहर से अंदर भी जा सकता है। तो जब क्रिस्टलाइड की कंसेंट्रेशन बाहर बढ़ जाएगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप ये कोलाइडल सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आप एक ही स्टेप में उसको रिमूव नहीं कर सकते। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि जो क्रिस्टलाइड डिस्टिल्ड वाटर में इकट्ठा हो रहा है वो बैकवर्ड मूवमेंट शुरू कर देगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, वाटर को हम इस कंटेनर में क्या बच्चे रिप्लेनिश करते रहते हैं। रिप्लेनिश मतलब ओल्ड वाटर को रिमूव करते रहते हैं और न्यू वाटर को डालते रहते हैं यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, होल ऑफ इम्प्योरिटी, एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटी को हम क्रिस्टलाइड से बाहर निकाल देते हैं। टोटली रिमूव कर देंगे तो आपका क्रिस्टलाइड अनस्टेबल हो जाएगा। टोटली भी रिमूव नहीं करते क्योंकि सिर्फ कोगुलेशन हो जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड फॉर स्टेबलाइजेशन, स्मॉल अमाउंट, तो थोड़ा सा रहने देंगे, एक्सेस को रिमूव कर देंगे। तो ये बच्चे ऑपरेटर यूज्ड इज कॉल्ड एज डायलाइजर and is shown in figure. The colloidal solution is taken in a bag made up of cellophane or parchment. The bag is then suspended in distilled water. The impurities slowly diffuse out, leaving behind the colloidal solution. Impurities इसमें से diffuse कर जाएगी, जिनकी नेचर क्या है बच्चे, crystalline. The distilled water is frequently changed to avoid accumulation of crystalline. Otherwise, they may start diffusing back into the bag. वो कह रहा है यहाँ पे कि डिस्टिल्ड वाटर इज फ्रीक्वेंटली चेंज्ड। डिस्टिल्ड वाटर को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है कंटेनर में से। अदरवाइज क्या होगा, जो आपका क्रिस्टलाइड है वो क्या करेगा बच्चे, वो वापस डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग बैक इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो मूवमेंट ऑफ क्या बच्चे, मूवमेंट ऑफ क्रिस्टलाइड इज बोथ वेज। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दोनों साइड से मूवमेंट लो करती है, थोड़े कि एक साइड से बाहर निकल गया फिर वापस नहीं आ सकता। तो जब बाहर कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगी इट कैन कम बैक। तो उससे बचने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर को फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, इसी के साथ बच्चे देखें यहाँ पे एक और कंसेप्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस का कंसेप्ट क्या है, आपको मैंने पहले बताया कि जो इम्प्योरिटीज हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर। उनकी नेचर क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट टाइप। इलेक्ट्रोलाइट टाइप नेचर होने की वजह से हम इलेक्ट्रोड्स लगा के इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें आपने क्या लगा देनी बच्चे, इलेक्ट्रोड, वन नेगेटिव इलेक्ट्रोड द अदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उससे क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ क्रिस्टलाइडल इंप्योरिटीज है वो फास्ट हो जाएगा। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ऑफ द क्रिस्टलाइड, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को करेगी। आप कहेंगे
कोलाइड्स आल्सो कैरी चार्ज, तो वो भी भाग सकते। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि जो पार्चमेंट बैग या सेलोफेन बैग है, ये क्रिस्टलाइड को तो अलो करता है अपने थ्रू, बट कोलाइडल पार्टिकल्स को अपने थ्रू ये अलो नहीं करता है। तो कोलाइड्स कैन नॉट पास, उसके लिए चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है बच्चे, है ना। तो मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी across membrane can be expedited मतलब फास्ट कर सकते हैं by applying electric field around the membrane. This process is called as electrodialysis. इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चे? The most important application is purification of blood in artificial kidney machine. जिन जिन लोगों के अनफॉर्चुनेटली किडनी काम करना बंद कर देते हैं, हमारे किडनी में बच्चे यही प्रोसेस चलता है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल है, वो हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे ब्लड को स्टॉप करती है और क्रिस्टलाइनल इंप्योरिटीज को जाने देती है। तो जब हमारे किडनी की जो मेम्ब्रेन है वो काम करना बंद कर देती है, हमारे किडनी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें ह्यूमन बीइंग्स को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो डायलिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है बच्चे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन आर्टिफिशियल किडनी मशीन where dialysis membrane allows passage of crystalline impurities present in blood and stops hemoglobin particles, which are colloidal in nature. Dialysis is used to remove ionic impurities from colloids so as to increase their stability. Excess ionic impurities को रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस की हेल्प लेते हैं ताकि हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चे वो स्टेबल रहे। Another method is बच्चे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हम अल्ट्राफिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं बच्चे। अल्ट्राफिल्टर पेपर वो होता है जिसमें फिल्टर पेपर का पोर साइज छोटा किया गया होता है बाई इम्प्रेगनेशन विद कोलाइडल पार्टिकल्स। इम्प्रेगनेट किससे करना बच्चे? कोलाइडल पार्टिकल्स लाइक दैट ऑफ कोलाइडन एंड जिलेटिन। जैसे बच्चे ये सपोज आपकी फिल्टर पेपर है, ये इसका पोर साइज है, इसके पोर्स के ऊपर इम्प्रेगनेट किया है किसको? छोटे छोटे पार्टिकल्स को, किसके? कोलाइडन और जिलेटिन के, है ना। तो साइज चूंकि कम कर दिया हमने, अब इसके थ्रू जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है इसके थ्रू क्या बच्चे? क्रिस्टलाइट तो पास कर जाएगा जब फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट तो आपको आता होगा, है ना। जब हम इस फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्रिस्टलाइट इसमें से पास कर जाएगा, बट कोलाइडल पार्टिकल्स विल नॉट। कोलाइडल पार्टिकल्स में से पास नहीं करेंगे, तो इस तरीके से हम क्रिस्टलाइट को कोलाइड से अलग कर देंगे, है ना। सो इन दिस मेथड कोलाइड्स आर प्यूरिफाइड बाय कैरिंग आउट अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेडेड फिल्टर पेपर कॉल्ड एज ultrafilter paper. Ultrafilter papers are made from ordinary filter papers by impregnating them with the colloidal particles like that of colloidal or gelatin. As a result, size of pores get reduced. These filter papers allow particles of true solution, that is crystalline particles, to pass but retain colloidal particles. Ordinary filter paper cannot be used because colloidal particles easily pass through the pores of ordinary filter paper. This is the concept. Now, last method of purification is ultracentrifugation. In this method, sol is taken in a tube which is placed in ultracentrifuge machine. sol को हम ट्यूब में लेंगे, उन ट्यूब्स को किस में डाल देंगे बच्चे? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। बच्चे ये मशीन जो होती है इसमें ये समझे आप एक ट्यूब है एक किस्म की, तो ऐसे इसमें ये ट्यूब्स लगी होती हैं स्लैंटिंग पोजीशन में, और फिर ये ऐसे घूमती हैं फास्ट स्पीड पे। इसका सेंटर पॉइंट है जो इसके साथ बच्चे जिसके साथ ट्यूब अटैच होती है, जिसके अंदर हमने ट्यूब डाली है, वो ऐसे घूमता है फास्ट स्पीड से। तो ये भी ऐसे घूमता है। तो ये क्या करता है? ये पुश करता है आउटवर्ड। इसका जो मूवमेंट है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को आउटवर्ड पुश करता है, तो कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है बच्चे? विच पुश आउटवर्ड। So in this method, sol is taken in a tube which is placed in ultracentrifuge on rotation of tube at high speeds. Ultracentrifuge इसलिए नाम दिया because here we will rotate it at very high speed.
colloidal particles settle down at the bottom of tube and impurities remain in solution. जो कोलाइडल पार्टिकल है वो बॉटम ऑफ ट्यूब पे बैठ जाएगी बच्चे, इंप्योरिटीज इसमें रहेंगी सोल्यूशन में, है ना। सोल्यूशन को हम उड़ेल देंगे, कोलाइडल पार्टिकल नीचे रह जाएंगे। कोलाइडल पार्टिकल में फिर फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम डाल के नए सिरे से फ्रेश प्योर डिस्पर्शन मीडियम डाल के नए सिरे से क्या बना लेंगे बच्चे, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। एंड इंप्योरिटीज रिमेन इन सोल्यूशन कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेट. The settled colloidal particles are mixed with the pure dispersion medium to regenerate the salt. सॉल्ट को रीजनरेट करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, तो सेटल्ड कोलाइडल पार्टिकल है, सेटल नीचे बैठ गए हैं, है ना, उसमें प्योर डिस्पर्शन मीडियम डाल के नए सिरे से क्या बना लेंगे बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। वो भी आपको समझ आया होगा, है ना। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इसने क्या किया, इसने पुश किया किसको, कोलाइडल पार्टिकल को आउटवर्ड, कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ गए, ट्यूब को उड़ेला, जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसमें कौन है, क्रिस्टलाइडल इंप्योरिटीज, जो आपका डिस्पोज्ड फेज है वो नीचे बैठ चुका है, वो सेटल कर चुका है, तो डिस्पर्शन मीडियम को हम बाहर निकाल देंगे, नए सिरे से प्योर डिस्पर्शन मीडियम डालेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी यूज द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. तो होप आप